So hello students, this class is for a topic called electric lines of force. This topic is very important for studying Gauss theorem. And if you actually know the electric lines of force properties in a very detailed and very nice manner, then Gauss theorem can be understood. And you know Gauss theorem has a lot of importance for solving a very complex questions of electric field intensity and all that. So that's why this class has a lot of importance. If you're a first time viewer of this particular channel, or if you have come first time on this channel, then you are requested to subscribe this channel so that you always get all the new videos updation by pressing the bell icon. And I would like to say that you must promote this channel to all of your friends, distant friends, so that this pandemic situations can be avoided in terms of this does not create a problem for students at least. This is a mission I'm actually on for students of all over the India. Right. I'm recording this lecture not only for my students who are being taught by me, but for rest of the country altogether, so that they can be helped by this particular video and the series of the video which are being recorded and uploaded on YouTube. So that's all I have to say, and please come along with me to study electric lines of force. This is electric lines of force. ये हमारे लिए टॉपिक है. Now, इस टॉपिक को हमारे सामने लाने वाला, the one who made us aware about this, that gentleman was Faraday. बहुत कामयाब साइंटिस्ट थे, and you know he's a very big name in the world of science and in the world of physics especially. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, तो मैं आपको फैराडे के दिमाग में ये बात कैसे आई होगी, मैं जब एज अ टीचर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज द वे लाइक ही थॉट ऑफ, ही परसीव्ड ऑफ. तो मैं आप सब लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूँ. देयर इज अ surface here, and this is a surface and grounded like. और अब इसके ऊपर एक हम कोई बॉक्स लाके रखते हैं. I keep a box over here. Let's see. This is a box here. Okay, and here on this extended part of surface, there is some boy standing here. एक छोटा सा बच्चा है, like, and he is making his hands like this. ये उसके हाथ. And he is doing some magic. वो कुछ magic कर रहा है. And this boy is doing some magic, and because of the magic, because of this magic, this body starts sliding. ये body इधर की तरफ जाने लगती है. इसने कुछ मैजिक किया और उसके वजह से ये बॉडी इसकी तरफ जाने लगती है. और इधर वाला जो बंदा है, he is not a magician. So if he wants to pull this block अपने साइड में खींचना चाहता है, तो वो कोई जुगाड़ लगाता है. He creates a, like, इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच करता है और स्ट्रिंग अटैच करके इसको पकड़ के अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचता है. So if he is like, अगर ये बंदा काम कर रहा है तो उसने अपना काम नहीं किया. सपोज करो इसको मैं डिस्कनेक्ट दिखा रहा हूँ. So अगर इसको जरूरत होगी खींचने के लिए तो वो इसमें बांध करके अपनी तरफ खींच ले जा रहा है. But this magician is a magician. Right, मैजिक मैन लिख देता हूँ या मैजिशियन है. तो इसने कुछ ऐसा किया कि ये ब्लॉक खुद ब खुद इसकी तरफ ट्रेवल कर गया, और जब इसको अपनी तरफ खींचना होता है तो ये धागे से बांध के खींचता है. तो नाउ माय पॉइंट इज कि हमें मालूम है कि अगर हम कोई चीज, अगर किसी टेबल पे कोई बॉडी रखी हुई है, लाइक दिस इज सम
सरफेस और यहाँ कोई बॉडी रखी हुई है, एंड इफ यू वांट टू टेक दिस बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपको इसको उठाना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगा करके आप इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन शिफ्ट दिस बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर। और अगर मतलब फोर्स किस तरीके का हुआ, फोर्स के बारे में जो हम लोग कल्पना करते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब धक्का लगाते हैं, पुश और पुल। और दूसरा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो जो फोर्स कॉन्टैक्ट वाली नहीं है, यानी कि आप पकड़ करके पुश और पुल करके नहीं लगाते, वो वाला फोर्स कैसे लगता होगा? क्योंकि सो नाउ हियर आई एम सेइंग दैट कि अगर इस केस में इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके भेजना हमें, तो हमें पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको इधर ले जाना चाह रहे हैं तो पुल करना पड़ेगा, या इधर से कोई पुश लगाना पड़ेगा। तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब भाई पुश और पुल होता है। हमें मालूम है कि अगर इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो पुश और पुल लगाना पड़ेगा। नाउ इन द केस ऑफ मैजिशियन, आखिर ये क्या करता है कि वो इसको यहाँ से खींच ले जाता है? तो कैन आई कॉल इट दैट कि मैजिक के थ्रू, मैं अब ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैजिक के थ्रू इसके पास कुछ इमेजिनरी हैंड्स हैं। इफ ही इज डूइंग मैजिक एंड इसको ये यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रहा है, तो मतलब हम लोग ना ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि फोर्सेस तो कांटेक्ट होते हैं। अगर आप किसी पे धक्का लगाना चाहते हैं या आप किसी को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो आपको पुश और पुल लगाना पड़ेगा। तो फिर अगर ये पुश और पुल नहीं लगा रहा, फिर भी ये बॉडी इसकी तरफ कैसे जा रही, हाउ दिस बॉडी इज गोइंग? तो इसका मतलब कि अगर हम इतना ही इंफॉर्मेशन जानते हैं कि कांटेक्ट फोर्स होता है, तो फिर भी यहाँ पे ये इसको खींच पा रहा है, इसका मतलब हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन चलेगा और वो कुछ इस तरीके का चलना चाहिए। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, लुक एट दिस हियर। मैं कहूंगा कि इसने ना कुछ इस तरीके के फोर्स, ऐसे इनविजिबल हैंड्स अपने लगाए हैं, इसने कुछ इस तरीके से इनविजिबल हैंड अपने जुगाड़ में लगाया होगा। और आप लोगों ने अक्सर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट कार्टून कैरेक्टर, राइट, स्पाइडरमैन, यस। तो स्पाइडरमैन को आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ से ऐसे हाथ करता है, उसके हाथ से कुछ फैब्रिक टाइप की कुछ चीजें निकलती हैं और जाकर के उस ऑब्जेक्ट पे चिपक जाती हैं और फिर वो फट से अपनी तरफ खींच लेता होगा। तो इसका मतलब इस मैजिक मैन के पास अगर इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाना है, तो वो मैजिक मैन इसके ऊपर क्या करता होगा, कुछ इनविजिबल हैंड लगाता होगा और इनविजिबल हैंड लगा करके इसको अपनी तरफ खींच ले जाता होगा। यू सी, आई सेड दैट हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। We are studying electric lines of force, and this perception, this concept was evolved by Faraday. And Faraday ने इसके बारे में कैसे सोचा, तो वो मैं आपको, I cannot be very sure that कि Faraday ने ऐसे ही सोचा होगा, but as a teacher I thought कि कुछ इस तरीके की बात होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने पहले एक बात बता दी कि फोर्स दो तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम इसके बारे में तो जानते नहीं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से कैसे काम करता है। चलो ये बात की बात है, फिलहाल यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आप इसको यहाँ भेजना चाहते हैं तो आपको पुश करना पड़ेगा, और अगर आप इसको यहाँ से इधर भेजना चाहते हैं तो आपको इधर पुश करना पड़ेगा या इधर से पुल करना पड़ेगा। तो हम लोग तो फोर्स के बारे में अगर बात करें, क्योंकि ना तो हमें कोलम्बियन फोर्स आंखों से दिखाई देती है, ना हमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमें आंखों से दिखाई देता है कि भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल तो कर रहा है, बट हमें दिखाई नहीं देता कि वो पुश कैसे लग रहा है या वो पुल कैसे लग रहा है, हमें दिखाई नहीं देता। तो मैंने वो जो दिखाई नहीं देता उस गैप को फिल करने के लिए फैराडे ने जो एक्सप्लेनेशन डेवलप किया होगा वो किस तरीके से किया होगा, तो मेरे नजरिए से मैंने एक एग्जांपल बना के आपको समझाया। मैंने बोला ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉडी रख दिया और यहाँ पे एक मैजिशियन रख दिया और यहाँ एक ऑर्डिनरी फेलो रख दिया। अब ऑर्डिनरी फेलो को अगर इस बॉडी को अपनी तरफ खींचना है तो वो एक थ्रेड लगाएगा और थ्रेड लगा करके इसको यहाँ से ऐसे बांध करके लेके जाएगा। और अगर इस मैजिक मैन है, इसके पास कुछ अलग तरीके के कारनामे हैं, तो वो इस बॉडी को बिना थ्रेड से कनेक्ट किए हुए, बिना पुश और पुल लगाए हुए, वो बिना पुल किए हुए वो इसको खींच पा रहा है। तो अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो पुलिंग थ्रेड कहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, और इसके पास जादू के कुछ हाथ होंगे जैसे कि स्पाइडरमैन के पास होता है, इसके पास जादू के कुछ हाथ होंगे जैसे कि ये
स्पाइडरमैन के पास होता है, वो अपने हाथ को उसने फैला दिया और फिर उस हाथ को अपनी तरफ खींच लिया जिससे कि ये बॉडी आ जाती है। तो ये जो इनविजिबल हैंड है, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनविजिबल हैंड, आई एम यूजिंग दिस, दिस आर व्हाट, ये क्या है यहाँ पे। तो मैं इन सब के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करूं कि ये इनविजिबल हैंड्स हैं, दे आर इनविजिबल हैंड। So I said that this is invisible hand. ये इनविजिबल हैंड इसने यूज किया और इस इनविजिबल हैंड से इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो हम आखिर हैंड वाली बात पे, या इनविजिबल स्ट्रिंग्स कहते हैं, हैंड कह लें, स्ट्रिंग्स कह लें, स्ट्रिंग्स कह लें, थ्रेड कह दें, जो भी कह दो, मतलब सम एजेंट लगाया होगा जिसके थ्रू पकड़ के उसको खींच रहा होगा। तो ये जो इनविजिबल अप्रोच की बात किए होंगे कि वो इसको खींच के लेके जा रहा है, क्योंकि ये सच है कि मैजिक मैन इसको खींच के लेके जा रहा है, बट हमें उसके हाथ नहीं दिखाई दे रहे। तो हम कुछ ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं ना भाई, और क्या कर सकते हैं। अब मैं इसी चीज को उठा करके दूसरे पेज पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स से ये, नाउ हियर आई चूज अ बॉडी लाइक दिस, यहाँ एक बॉडी चूज करता हूँ। लेट्स से आई चूज हियर अ बॉडी, और मैं कहता हूं कि इस बॉडी के ऊपर और इस बॉडी के ऊपर, ये दो बॉडीज मैंने ले ली। और अब मैंने बोला कि मैंने ये बोला कि इन दो बॉडी के ऊपर इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कैसे करती होगी, और अट्रैक्ट होता है ये तो आपने पढ़ लिया इतने दिनों में। ये अगर इनके बीच में आर डिस्टेंस है, यहां से लेकर के इनके बीच में अगर ये आर डिस्टेंस है, if this is r distance here to here, तो अगर ये r डिस्टेंस है यहाँ तक, तो हमें पता है कि इनके बीच में फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज हाउ मच, दैट फोर्स वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स लगता है यहाँ पे। तो अगर ये फोर्स इसमें लग रहा है टू k q स्क्वायर, अगर ये फोर्स लगता है, तो ये फोर्स लगने की वजह से ये इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये बॉडी इधर जा रही है या ये बॉडी इधर आ रही है, और यहाँ पे कोई फोर्स हमें विजिबल दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन हाथ लगा के पकड़ के खींच रहा है, बट ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई कहे, मतलब फैराडे ने अगर सोचा कि देखो ये प्लस क्यू से एक इनविजिबल हैंड निकला कुछ इस तरीके का, एक इनविजिबल हैंड बना। फिर किसी ने बोला लो एक दूसरा हैंड भी कुछ इस तरीके से निकला। फिर किसी ने बोला देखो जी एक तीसरा हैंड ऐसे निकला यहाँ से। एक चौथा हैंड किसी ने प्लान किया, बोला इस तरीके से निकला होगा। मतलब यू कैन थिंक ऑफ, किसी ने बोला कि नो नो इस तरीके से कुछ निकला था, राइट। सो आइडिया इज दैट कि अगर आप ऐसे मान के चलोगे कि ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, और इस पे ऐसे एरो दिखा दिया आपने, राइट, और यू आर सेइंग दैट कि और इस पे आपने ऐसे दिखाया। तो मतलब आप एक बात का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, कि यू आर गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट फैक्ट, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और हम एक आदमी को जो कोई इनविजिबल चीजें उसको दिखाई नहीं देती, राइट, तो उसको आप कैसे समझाओगे। उसको ये कहोगे ना कि इससे कुछ इनविजिबल हैंड्स निकलती होंगी जो दिखाई नहीं दे रही है, जो इसको पकड़ के जाती होंगी, यहाँ पे पकड़ लेती होंगी, फिर उसको पकड़ के खींचती होंगी। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। तो ये जो परसेप्शन बिल्डअप हुआ, इसी को मतलब फैराडे ने बोला कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। These are electric lines of force. These are electric lines of force.
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। सो नाउ द आइडिया इज कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो अब क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या सिर्फ इनविजिबल? ये मेरा परसेप्शन है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी बुक व्हिच सजेस्ट कि ये इनविजिबल हैंड की तरीके से। ये मेरा परसेप्शन है कि फैराडे के दिमाग में जरूर इस तरीके की बात होगी, तभी वो इनविजिबल के बारे में ऐसे सोचे होंगे और उनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा होगा। और मैंने इसको क्या कहा कि ये इमेजनरी हैंड की तरीके से, इमेजनरी लाइंस और थ्रेड्स और स्ट्रिंग्स। So I was saying that electric lines of force, this is imaginary lines like threads, string, कुछ इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। This is what the point is. अब सवाल ये कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए और फिर इसको समझाया कैसे जाए। So मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने इतनी बात तो समझ ली होगी। So now we have to study properties of electric lines of force. Properties of ELF, that is electric lines of force. हमें ये पढ़ना है। This is what we need to study, properties of electric lines of force. तो इसको समझने के लिए राइट पहले हमें डेफिनेशन भी लिखना है यहाँ पे, तो आपको डेफिनेशन भी समझना है और इसके प्रॉपर्टीज को भी समझना है। तो डेफिनेशन के लिए हमने जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने यहाँ पे, I say this is a positive charge and this positive charge is on some charge body like this, कुछ इस तरीके का कोई चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, ये प्लस चार्ज है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। नाउ इफ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, this is a positive charge here, plus q here. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इस प्लस क्यू चार्ज के सामने यहाँ पे अगर क्यू नॉट रख दो, छोटा चार्ज रख दो क्यू नॉट, या अगर यहाँ क्यू नॉट रख दो, या यहाँ क्यू नॉट रखो, या यहाँ क्यू नॉट रखो, तो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? ये फिक्स है सपोज करो, तो इसको क्या करेगा? भगाएगा इधर की तरफ, इसको वो रिपेल कर देगा कुछ इस तरीके से, इसको भी क्या करेगा? रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इसको भी वो कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इट विल रिपेल लाइक दिस, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल कर देगा। सो ऐसे भी रिपेल कर देगा, ऐसे रिपेल कर देगा, ऐसे रिपेल कर देगा और ऐसे रिपेल कर देगा। दिस इज हाउ इट विल डू इट। प्लस क्यू चार्ज के सामने अगर ये क्यू नॉट रखोगे तो इसका मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज के जो इनविजिबल हैंड्स हैं वो किस तरीके से होते होंगे, हाउ दिस इनविजिबल हैंड कैन बी ड्रॉन। क्योंकि यहाँ छोड़ते हो तो इधर भाग जाएगा, इसको रखोगे तो ऐसे भगा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हमें इस पॉजिटिव चार्ज के इनविजिबल हैंड्स दिखाने हैं तो हाउ विल डू इट। सो लेट्स सी, मैं इस बात को यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे अपने ये पॉजिटिव चार्ज रहा हूँ। दिस आई टेक इट लाइक कि ये बोला कि हेलो, ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से बनते होंगे। हम इतने क्यों दिखा सकते, इससे ज्यादा भी दिखा सकते, वी कैन शो इट मेनी। तो अगर ये जो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हमने इस बॉडी में रख दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के इनविजिबल हैंड्स ऐसे निकल के आएंगे और इसी को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह रहे हैं। दिस आर आवर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे ये देखी कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि ये दिख रहा है आइसोलेटेड है, इकलौता है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। तो हम इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, बट इसके पहले अब हमारे पास एक रास्ता हो गया है यहाँ पे इसके डेफिनेशन को लिखने का। तो मैंने बोला था कि इसके डेफिनेशन को मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले हम इस प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज जो हमारे सामने आई कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। So let's see how we are going to deal with this. So हमने बोला यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक
lines of force for an isolated positive charge, electric lines of force for an isolated positive charge are radially outward. Electric lines of force for a positive isolated charge are radially outward. रेडियल बोलने का मतलब क्या हुआ? सेंटर से निकल के जा रही है, आउटवर्ड होएंगे. ये आपने इस जगह पे पढ़ लिया. अब अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन. बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स for an isolated negative charge are radially inward. तो इस बात का क्या मतलब है? तो इसका मतलब फिर we'll take this, हम एक चार्ज लेंगे यहाँ पे और आपको यहाँ ये हमने चार्ज लिया और इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज लिख दिया. बोला कि इस पे चार्ज कैसा है जी? माइनस क्यू चार्ज है. यहाँ माइनस क्यू चार्ज है. और अगर आप क्यू नॉट यहाँ छोड़ोगे तो वो क्यू नॉट किधर जाएगा? ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा कुछ इधर की तरफ. यहाँ रखोगे क्यू नॉट तो किधर जाएगा? इधर अट्रैक्ट होगा. अगर यहाँ रखोगे क्यू नॉट तो किधर होगा? वो अट्रैक्ट होएगा. यहाँ रखोगे क्यू नॉट तो किधर होगा? वो अट्रैक्ट होएगा कुछ इस तरीके से. यहाँ रखोगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होएगा. यहाँ भी रखोगे तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होएगा. इसका मतलब ये माइनस चार्ज के इनविजिबल हैंड्स हर जगह हैं और वो किधर है? उसकी तरफ है. तो इस बात को अगर आप यहाँ दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? तो यू शो इट अगेन लाइक दिस. सर हम यहाँ पे ये चार्ज ले लेते हैं. हमने ये चार्ज ले लिया, ऐसे ले लेते हैं. ये चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं. दिखा रखा है ये. यू आर शोइंग दैट कि ओके ये एरो है, ये ऐसे इसकी लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ है, सारी अंदर की तरफ है लाइंस ऑफ फोर्स. So you can show that कि these lines of force are radially inward. तो ये दो प्रॉपर्टीज आपने समझ ली. ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होती है? रेडियली इनवर्ड होती हैं. ना अगर हम आपसे ये दो पॉइंट क्लियर हो गया, अब अगर एक तीसरे की बात करें हम और अब यहाँ पे आ जाएं, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें हम. और थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग एक डायग्राम ऐसे बनाते हैं. बोलते हैं कि हेलो एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है यहाँ पे, वी हैव टेकन अ पॉजिटिव चार्ज एंड हियर वी हैव टेकन अ नेगेटिव चार्ज. और अब हमने इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक लाइन लिया कुछ इस तरीके से. जरूरत नहीं, लेट्स सी. और बोला कि इस पे जो चार्ज है यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है. और अब अगर आप यहाँ क्यू नॉट चार्ज छोड़ो, इफ यू लीव अ क्यू नॉट चार्ज हियर, सो वेयर दैट क्यू नॉट चार्ज विल गो? अगर आप यहाँ क्यू नॉट छोड़ोगे तो ये भगाएगा इसको इधर की तरफ और ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से. तो इसका नेट रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा इस पे. तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा. अब अगर वो यहाँ आ गया तो अब ये किधर भगाएगा उसको? ऐसे भगाएगा. ये किधर बुलाएगा? ऐसे बुलाएगा. तो अब इसका रिजल्टेंट थोड़ा इधर शिफ्ट होएगा. तो लेट्स सपोज वो यहाँ आ गया. फिर ये क्या करेगा? ये इसको अभी भी इधर भगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा इसको. अब इससे डिस्टेंस दूर होता जा रहा है, इससे कम होता जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर भागते जाएगा. सो फाइनली फिर वो यहाँ पहुंचेगा, ये इधर भगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा. तो इस तरीके से ये धीरे धीरे किस पे चलाएगा? तो अगर आपने ये क्यू नॉट रखा है, दिस इज क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, तो ये और प्लस रखा है, प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट. तो ये धीरे धीरे क्या हो गया? If you look at this has actually traveled on this kind of path. कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ यहाँ आएगा. तो इसका मतलब इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का, और अगर इस पे रख दिया होता, अगर ये प्लस क्यू नॉट यहाँ रखा होता आपने,
तो क्या होता है, ये इसको रिपेल करता है, ये अट्रैक्ट करता है, तो ये इस लाइन पे ऐसे भाग जाता है। अगर आप यहाँ छोड़ते तो क्या होता है, ये भगाता है और ये अपनी तरफ खींचता है, ये कुछ इस तरीके से होता हुआ ये इधर चला आता है, कुछ इस तरीके से होता हुआ ये ऐसे चला आएगा, कुछ इस तरीके से होता हुआ ऐसे चला आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके के पाथ पे जा रहा है। तो अगर हमें इसी डायग्राम को, इस डायग्राम को यहाँ पे दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इट, लुक एट दिस, इसी चीज को दिखाना है। तो अब हम देखिए क्या करने जा रहे हैं। हाउ डज इट लुक लाइक, इज समथिंग लाइक दिस। ये लाइंस ऑफ फोर्स होंगी कुछ इस तरीके की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इस पे। और इन लाइंस ऑफ फोर्स का ये है कि फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एज शो। अब जरा गौर से देखिए, आपने देखा कि लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे कैसी है भाई, कर्व है। यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, बट दिस लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कर्व। और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स आपको कैसी मिली, दिस इज वेरी स्ट्रेट, रेडियल इनवर्ड। यहाँ पे कैसी मिली, रेडियली आउटवर्ड। तो अब डिफाइन कैसे करें हम, द डेफिनेशन व्हिच इज बीइंग रिटन, दिस इज बीइंग गिवन बाय मी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, electric lines of force are imaginary and or curvilinear lines इनको curvilinear line कहेंगे। electric lines of force are imaginary and smooth straight lines or curvilinear lines on which or free, ये free charge on which a free isolated test charge moves freely. Lines of electric lines of force are imaginary and smooth straight lines, like इसमें straight lines, इस केस में भी straight line, और यहाँ पे this is in form of curve. So electric lines of force are imaginary. Electric lines of force are imaginary and smooth straight lines or curvilinear lines on which a free isolated test charge moves freely. Test charge moves freely. यानी कि इस पे छोड़ दो टेस्ट चार्ज तो स्वतंत्र रूप से भाग जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल। यहाँ पे भी अगर टेस्ट चार्ज करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। आई टोल्ड यू दैट दिस डेफिनेशन इज बीइंग गिवन बाय मी। ये डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। दिस डेफिनेशन इज बीइंग गिवन बाय मी। तो एनीवे ये प्रॉपर्टीज हो गई। ये मैंने यहाँ पे आपने नोटिस किया कि इमेजिनरी होती हैं, कैसे स्मूथ, मतलब उस पर कोई इमेजिनरी है तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि वो कर्विलिनियर, आई मीन उस पर रफ होएगा। इमेजिनरी एंड स्मूथ स्ट्रेट लाइंस। और कर्विलिनियर भी हो सकती है। कर्विलिनियर कब होगी, फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस, राइट, चाहे वो पेयर ऑफ चार्जेस प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। और अगर वो आइसोलेटेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो इस तरीके से ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब चौथी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो क्या हो सकता है, प्लस प्लस चार्ज का या माइनस माइनस चार्ज का। तो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, लेट्स सी, वी विल टेक टू पॉजिटिव चार्जेस फर्स्ट। हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया, और बोला कि इन दोनों पॉजिटिव चार्ज पे के फील्ड, दोनों पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज छोड़ दिया जाएगा, तो अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो डेफिनेटली ये भगाएगा और ये भी भगाएगा, तो यहाँ कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अगर ये Q1 है and this is Q2, तो you know we have discussed about the conservation of charges, और हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का न्यूट्रल पॉइंट भी पढ़ा हुआ है। तो कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। सो लेट्स सपोज दिस इज, यहाँ पे एक इस तरीके से बोल दिया ये, हेलो ये न्यूट्रल जोन हो, यानी कि ये वो जगह है यहाँ, या ये वो पॉइंट है, ऐसे बोला, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट N। क्या हुआ जी, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे दोनों की वजह से इसका, अगर यहाँ Q0 रखा आपने तो ये इस पे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल हो गए।
अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो ये बीच में आएगा, सेंटर पॉइंट पे होगा। अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है तो R1 और R2 का डिस्टेंस लेके करना पड़ेगा, आपको पता है। लेकिन अगर यहाँ रखोगे तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भाग जाएगा इधर की तरफ। अगर यहाँ पे रखोगे पॉजिटिव चार्ज तो ये कहेगा मैं रिपेल करूंगा इधर की तरफ, ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल कराएगा, तो ये क्या करेगा, इधर भाग जाएगा, ऐसे भगाएगा। यहाँ पे भी अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये उसको भगाएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये क्या करेगा, इधर भगाएगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ। समथिंग लाइक दिस विल हैपन। तो नतीजा क्या मिलेगा, इसका नतीजा कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो लेट्स ड्रॉ दिस टू चार्जेस अगेन एंड उनके लाइंस ऑफ फोर्स को हम दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चार्ज रख लिया, फिर एक चार्ज ये रख लिया। तो अगर हमने इनके प्लस चार्ज को दिखा दिया कि यहाँ पे प्लस Q1 है एंड दिस इज प्लस Q2, तो ये इनकी लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। सो इसका मतलब फॉर अ पेयर ऑफ यहाँ पे भी हमने पेयर ऑफ चार्जेस लिखा था, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ, तो फिर फॉर अ पेयर ऑफ two positive charges, electric lines of force are as shown. तो इधर मैं आपको क्या बताया कि ये होगा कैसे, मतलब कैसे ये रिपेल कर रहा है, तो इसलिए ये ऐसा बनेगा। नाउ अगला प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो अब क्या करेंगे, हम एक माइनस माइनस लेके चलेंगे। तो नेगेटिव का करने जाएंगे तो देखो जैसे प्लस प्लस का ऐसे भागा तो माइनस रखोगे तो ये सब बिल्कुल सेम बनेगा, यही क्या होगा, सब ऐसे ही होंगे, बट सब पे एरो किधर लगेगा, अंदर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है, अंदर की तरफ। तो जैसे फिर भी चलो उसको समझने के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं। सो वी टेक अनदर टू चार्जेस, और बोला कि ये जो दो चार्जेस हैं इन दोनों पे नेगेटिव चार्जेस है। व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हमने बोला इन पे नेगेटिव चार्ज है और वो है -Q1 और -Q2। तो ऑब्वियसली यहाँ भी कहीं न्यूट्रल पॉइंट होएगा, मान लें कि ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। और फिर अगर यहाँ पे रखोगे चार्ज, प्लस चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट इसका अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा क्योंकि ये इसके नजदीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो लाइक दिस इधर आएगा। फिर यहाँ पे रखो, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। फिर ये बड़ा है तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी तरफ चलता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम ये डायग्राम बनाए फिर से दो चार्ज दे करके, तो हाउ द रिजल्ट इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज हाउ इट इज गोइंग। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स लाइक फॉर अ पेयर ऑफ two negative charges, electric lines of force are as shown. तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। This is 4 and this is 3, 2, 1। लाइक इस पे मैंने दिखाया था कि वो कैसे करता है, फिर बाद मैंने इसको मिटा के ऐसे कर दिया। तो क्या ये 5 ही प्रॉपर्टीज है, नहीं, अब इसके बाद की प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के नजरिए से। लेट्स सी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आपने जो बात समझी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ज्यादा आएगा और यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का सेपरेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो तो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पास है, यहाँ जाओ तो दूर होते जा रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइक क्लोजर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, closer electric lines of force means greater electric field intensity।
Closer electric lines of force means greater electric field intensity. What I mean to say that if we do something like this, सपोज कुछ इस तरीके का लाइन्स ऑफ फोर्स है कहीं पे, तुमको ऐसा कि किसके वजह से होगा किसी की वजह से, सपोज कर लो किसी की वजह से ऐसा होता हो, सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है. सो नाउ माय पॉइंट इज कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, राइट, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ चूज करता हूँ ए, एक पॉइंट चूज करता हूँ मैं इस जगह पे बी, और एक पॉइंट मैं चूज करता हूँ सी. दिस इज ए, बी एंड सी. सो यू नो लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर वेरी फार अवे हियर. इसके कंपैरेटिवली यहाँ पास पास है और यहाँ बहुत पास पास है. सो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का मॉड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के मॉड से बड़ा होगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के मॉड से. So closer lines of force means greater electric field intensity. अब इस बात का ये बेस बना हमारा गॉस थ्योरम को समझने के लिए, राइट. तो क्या हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि लाइंस ऑफ फोर्स किसी जगह से जितनी ज्यादा पास करती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है. तो इसी पॉइंट को फिर से ऐसे लिख दें 6, और अब ये 7वां तरीके से थोड़ा और स्पष्ट तरीके से, राइट. If more number of lines of force, more number of electric lines of force, if more number of electric lines of force are passing through a point, means there is higher electric field, higher electric field. तो obviously किसी से कंपेयर किया जाएगा तब ना भाई बात है. हाँ, किसी पॉइंट पे अगर मोर है तो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, तो दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी. तो ये जो 6th पॉइंट है और जो 7th पॉइंट है, ये तो ऑलमोस्ट एक ही बात कही जा रही है. हाँ, बट फिर भी इसको अलग से लिखवाया गया कि कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की काउंटिंग करके किसी पॉइंट से, और हम बता सकते हैं कि क्या होता है. ये दो बात तो आपको समझ में आ गई होगी. और अब इसी को थोड़ा और मैथमेटिकल फॉर्म दिया जाए तो ये 8वां पॉइंट खड़ा हो गया आपके लिए. क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, electric field intensity at a point is directly proportional to number of lines of force passing through given area, passing through unit area perpendicular to the passing through unit area being perpendicular to the area, being perpendicular area. अब ये perpendicular electric field intensity at a point is directly proportional to number of lines of force passing through unit area being perpendicular to the area. अब जरा इस बात का हम बैकग्राउंड बना के लेके आते हैं आपको. आपने नोटिस किया कि सबसे पहले आपने बोला कि रेडियली आउटवर्ड होता है. जब रेडियली आउटवर्ड होता है तो ऑब्वियसली ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, यानी कि नॉर्मल निकल रहा है ना ऐसे. Yes, you cannot deny it. So that's what the point is. ये perpendicular निकल रहा है. तो इसका मतलब अगर इस जगह से more number of lines of force निकल रही हैं और perpendicular to the area, यानी कि उस given area से perpendicular होकर के ज्यादा निकल रही हैं, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी. यानी कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is directly proportional to number of lines of force passing through unit area being perpendicular to the area.
अब मैं इस बात को समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं और आप समझें। यहाँ पे मैं एक रिंग लिया यहाँ पे, राइट। लेट मी चूज अ रिंग का कलर थोड़ा अट्रैक्टिव चूज करते हैं एंड देन सी इट। आई टेक अ रिंग हियर और एक ये यूनिट एरिया है। और अब मैं यहाँ पे एक और एरिया लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने जरा देखिए ये क्या बात समझाई जा रही है। मैंने आपको बोला है कि ये जो टॉपिक पढ़ाया जाता है ये गॉस थ्योरम की बुनियाद बनाते हैं। लाइन से फोर्स से बाहर निकल रही है। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। इसको देख के कोई भी बता देगा कि अरे इस पे जो लाइन्स ऑफ फोर्स आ रही है ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में गई और यहाँ पे ऐसे गई। तो अब देखो ये सारी लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर हैं इस एरिया के, इस एरिया के ये परपेंडिकुलर। ये एक गिवन एरिया लिया आपने और यहाँ भी आपने गिवन एरिया ले लिया एंड दिस एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि अगर किसी गिवन एरिया से, खास करके स्पेशली वो यूनिट, जैसे यहाँ से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 गई तो 1 से कितनी जाएंगी 5, इससे कम जाएंगी। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से इतनी लाइन्स ऑफ फोर्स आ रही है। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन दिस। और हमने सब परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये लिखने की कोशिश किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे होता है, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, उसका जो मॉड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स passing through given area, unit area being perpendicular to the area. Electric field intensity at a point is directly proportional to number of lines of force passing through unit area being perpendicular to the area. ये हमारा कॉन्सेप्ट है। This is what we, ये बात हमने लोगों ने कैसे खींच के लाया, इस बात को पहले यहाँ से देखिए, क्लोजर मतलब दिस, फिर हमने इसको यहाँ तक लेके आया और फिर यहाँ लाने के बाद अगले स्टेप में उसको इस तरीके से बना के रखा। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये क्या बात हो रही है। अब इसका मतलब कि सर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की काउंटिंग अगर हो जाए तो हम किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर वहां पे ज्यादा काउंटिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दैट्स द पॉइंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब अगले स्टेप में, दैट इज 9th नंबर पॉइंट की बात करें हम, वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि आपने नोटिस किया कि अभी तक जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स आपने ड्रॉ की, ये बनाया या इधर कहीं बनाया या ये बनाया आपने या ये बनाया आपने, किसी भी जगह पे आपने बनाया, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स आपने ड्रॉ की हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो आपने ड्रॉ की, तो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे ये दो हैं या इधर हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एंड दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never intersect, never intersect, never intersect each other, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। Why so? Why so? तो अगर इसको आप समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप जरा देखिए यहाँ पे, सपोज कर लो आप ये पॉजिटिव चार्ज लिया आपने और आपने बोला है कि यू नो लाइक इसकी लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, रेडियल आउटवर्ड होती हैं, रेडियल आउटवर्ड होती हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इसकी एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी। अब आप यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, बोलो सर इसकी भी लाइन ऑफ फोर्स आ रही है ये, और इसकी भी एक ऐसे जाएगी, सपोज आपने ऐसे बोला इसकी भी जाएगी, तो सर ये दोनों रास्ते में कहीं काट नहीं देंगे, ये आपस में कहीं कटेंगे नहीं सर इस तरीके से, इट इज नॉट लाइक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कट गई कि नहीं कट गई। तो जरा देखो कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो आपने क्या किया था यहाँ पे इसको समझाने के लिए, आपने बोला कि अगर प्लस चार्ज रखोगे तो देखो इसका भी फोर्स लगेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसका फोर्स ऐसे लगेगा, इसका फोर्स ऐसे लगेगा, रिजल्टेंट ये आएगा। तो ये रिजल्टेंट की वजह से क्या, तो ये क्या था, ये क्या आपने बनाया, इन दोनों चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट लाइंस ऑफ फोर्स।
तो ये एक दूसरे को कैसे काट लेंगे? अगर फोर्सेस इसके वजह से यहाँ पे बन रहा है, इसके वजह से बन रहा है, तो उनका एक रिजल्टेंट बनेगा। तो वो रिजल्टेंट हर पॉइंट पे, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा फील्ड, यहाँ जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, यहाँ जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, उन्हीं की वजह से तो आपने बनाया है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड वाइस, और आपने ऐसे बोला कि देखो जी यहाँ तो कट रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअली दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वो तो क्या है यहाँ पे, ये आपने लाइन दिखा दिया ऐसे ऐसे, ऐसा कोई रियल लाइन तो है नहीं, ये तो इमेजिनरी लाइन है, मतलब यहाँ पे छोड़ोगे तो भाग जाएगा, तो ये तो रिजल्टेंट फील्ड है ना यहाँ पे। तो किसी भी जगह पे, मतलब अगर एक कहा जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और एक पॉजिटिव चार्ज है, या ये इसको नेगेटिव चार्ज बना दिया जाए, लेट्स से दिस इज, ये नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, और ये इसकी लाइंस ऑफ फोर्स है। तो इस पॉइंट पे ये पोजीशन है, तो ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। आपने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे सब जगह ये समझाने की कोशिश की आपको कि देखो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे इधर की तरफ लग रहा है, फिर इधर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे चला जा रहा है। और इसके पीछे वाले में मैंने बताया देखो ये ऐसे भाग रहा है, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, फिर ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, तो ये ऐसे भाग जाएगा, ये ऐसे भाग जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फील्ड का जो किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन होता है, उसी को तो ध्यान रख करके आपने ये ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ये टेंजेंट होगा, तो यानी कि इस जगह पे ये रिजल्टेंट से बना, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। अब एक 10वीं प्रॉपर्टी आपको कुछ इस तरीके से बताई जाएगी कि इलेक्ट्रिक, ये बात एक तरीके से मालूम होनी चाहिए आपको कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट फील्ड का है, ये इस जगह का रिजल्टेंट फील्ड है, ये इस जगह का टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ का ER1 ER2 मतलब यहाँ का फील्ड है, तो ये रिजल्टेंट फील्ड है, तो मतलब दोनों के वजह से है, तो अब वो कहीं कटने का कोई चांस नहीं बनता। तो इसी बात को उठा करके हम ऐसे लिख दें आप अगर अगले पॉइंट में इस तरीके से कि राइट, टेंजेंट drawn at any point, tangent drawn at any point of electric lines of force gives direction of resultant electric field intensity at that point. So अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनाया है कि भाई यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, और आप इस जगह पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, आप यू आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट, इसको यूज करते हुए टेंजेंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, आई एम सेइंग दैट कि ये डायरेक्शन टेंजेंट का है, यहाँ ये इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ये इस जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो टेंजेंट drawn at any point of electric lines of force gives direction of resultant electric field intensity at that point. और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो खुद ही टेंजेंशियल है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया, टेंजेंट वाली बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देखिए आप, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे दिखाओगे? हाउ विल यू शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो यू विल से दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. So why do we use this kind of electric lines of force to represent uniform electric field intensity? तो बहुत सिंपल रीजन है. What? सिंपल रीजन क्या है भाई? कि आपको पता है, क्या पता है जी, कि इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, देखो इस प्रॉपर्टीज पे जाओ, you say that number of electric lines of force passing through a given area being perpendicular to the area जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो अगर आपने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म, लाइक इफ यू टेक दिस, ये रिंग लो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से,
एंड यू से दैट यहाँ पे आपने एक रिंग ले लिया, ओके फाइन, फिर यहाँ भी एक रिंग ले लो आप, बिल्कुल कुछ ऐसे ही। तो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू सी दैट, ओके सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, और हर जगह पे अगर आप छोटा छोटा सर्कल लेके चलोगे, इफ यू टेक अ स्मॉल सर्कल और इफ यू टेक अ स्मॉल सर्कल यहाँ पे लोगे, so it means what, if you take this, तो ये सर्कल हमारा, चलो इसको लेना छोड़ देना होगा, समझ आएगा। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर आपने इक्वल एरिया लिया है इसका, तो इससे देखो 2 पास हो रही है, यहाँ इक्वल एरिया लो तो 5 पास हो रही है। सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का तरीका होता है कि पैरेलल और व्हाट इक्विडिस्टेंट लाइंस ऑफ फोर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पैरेलल एंड equidistant lines of force are used to represent uniform electric field, right? So these are the basic points like one has to take care. ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। कर्व कब होती हैं, जब सेट ऑफ चार्जेस होते हैं, ज्यादा एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं। रेडियल आउटवर्ड पॉजिटिव के केस में, रेडियल इनवर्ड नेगेटिव के केस में, एक प्लस माइनस के केस में आपने देखा कर्व है, 2 प्लस के माइनस में देखा है उसमें भी कर्व है, राइट। 2 माइनस के बीच में देखा कि वहां पे भी कुछ कर्विलिनियर लाइंस मिलती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसी के दम पे स्पेशली दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी यूज्ड टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग कर पाए हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ थॉट, लाइक कि अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी सारी लाइंस बना देता हूँ आपके लिए, which is electric field. I mean, we can choose this color and we can represent this field like this, like field. Now, if somebody is interested to find कि यहाँ पे field बताओ, ये A3 point है. So this point is 3. Sorry, ये 3 point कह रहा हूँ. This is here the field is E3. This is point 3. So like 1, 2, 3 are respective centers of respective circle. So where electric field is like if E1, E2 and E3. So which one is bigger? So you know E1 will be bigger than E2 and E2 will be E3. Mind you here E3 will be 0. Note करके समझना है. Why E3 is 0? Why E3 is 0? Because no lines of force are passing through point 3. Lines of force 3 जिस plane में है, lines of force उसके नीचे से गुजर रहे हैं, इसलिए वहां पे कोई field नहीं है. So that's all. इसके साथ ही ये क्लास खत्म होती है. So you all are requested to see this lecture in a very detailed way. And जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि सिंसियरली पढ़िए. आप लोग कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछिए. अगर आपको कहीं किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, you can write to me in comment box and definitely I'll be answering to you. So right, promote this channel to your friends. Keep promoting, keep sharing. Subscribe if you have not done till today, and must press bell icon so that you remain updated. So thank you very much. God bless you all. See you in the next lecture.